Good morning students. Today I am going to explain the next chapter of the class 8 chapter squares and square roots. In this video we are going to explain some topics based on the chapter like the first topic is squares and the second topic is perfect square. In this video I am going to explain what is a square number and what is the definition of square and what is the perfect square number. So this is the first video of the chapter 3 square and square roots of class 8. Let's start. And the first topic is square. First we know about the definition of square. What is the square? The definition is if a number is multiplied by itself then the product is so obtained is called the square of that number. स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? इफ अ नंबर, अगर किसी नंबर को इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, देन द प्रोडक्ट इज सो ऑब्टेन्ड, जो नया प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. तो उसको क्या बोलते हैं? उस नंबर का स्क्वायर नंबर बोलते हैं. इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट सम एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. If we multiply 3 by 3, it can be written as 3 square. According to this is the base and the power is 1. If bases are same then powers are added, then it becomes 3. 1 plus 1 2. It can be written as 3 square, and 3 square equals to, it gives 3 into 3 is 9. ठीक. Come on to the next example, that is 9 into 9. Now it can be written as 9 square and it becomes 81. Some more examples. Suppose 10 into 10 is equals to, it can be written as 10 square and the answer is 100. Is that clear? According to definition of square, if one number multiplied by itself, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन जो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. दैट it can be read as 9 is the square of 3. Here 81 is the square of 9, and in this next example 100 is the square of 10. Is that clear? According to the definition of square, if we multiply a number by itself, अगर हम किसी भी नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर जो रिजल्ट प्राप्त हमको जो ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर एंड द स्क्वायर नंबर ऑफ दैट नंबर जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल्स हो गए. इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया सपोज 3, हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का यूज किया, बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लाई, देन इट बिकम्स 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर बिकम्स 9. देन द 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 बिकॉज वी गेट 9 फ्रॉम द multiplying of the number 3. Come on to the next, that is 9 into 9, it becomes 9 square. The answer is 81 and 81 is the square of 9. Again 10 into 10 equals to 10 square equals to 100 and 100 is the square of 10. So this is the definition and examples of the topic square. So I hope you understand betterly. Come on to the next topic, that is the perfect square. What is perfect square? And what is the difference between the square number and the perfect square number? The next topic is perfect square. Perfect square. Now we will discuss the next topic, that is perfect square. What is perfect square? A natural number is called the perfect square or a square number if it is the square of some natural number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है दैट इज आल्सो नेचुरल नंबर एंड वी कैन से इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. एवरी स्क्वायर नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इज दैट क्लियर? जो भी हमारा फॉर एग्जांपल जैसे नंबर है 4 into 4 it gives 4 square and it gives 16. Then 60 is also natural number, 4 is also natural number. Now we multiply 4 by 4, it becomes 4 square and results 16. And the 16 is the square number and 16 is also a perfect square number. We can say square and perfect square both numbers are same. Is that clear? चलिए अब इसको देखते हैं. इसको हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें
कि अगर एक टेस्ट है हमारा छोटा सा, उस टेस्ट के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर जो गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो वो टेस्ट क्या है उसको हम डिलीट करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ 900। हमारे पास एक नंबर है 900 एंड द क्वेश्चन इज 900 परफेक्ट स्क्वायर। क्या 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 900 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? वैसे ये नेचुरल नंबर है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटा सा हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, उस टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर होता है उसको हम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। नाउ इट बिकम्स 450, अगेन 2 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 the 10, again 5 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 9 the 45, 3 3 the 9, 3 1 the 3. Now the factors of the 900 are 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3. Now we can write it as 900 equals to 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3. into 3. 2 to the 4, 4 5 the 6, 4 5 the 20, 25 the 100, 100 3 the 300, 300 3 the 900. Now it is the factors of the number given number 900. Now अब हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन होता है उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जब हमें फैक्टर मिल जाते हैं देन हम क्या करते हैं, जहां से हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि हमारे जो सेम नंबर्स हैं उनके पेयर बनाएंगे इक्वल फैक्टर्स के। तो यहाँ देखिए 2 and 2 इट मेक अ पेयर। ठीक है, तो 2 सेम नंबर्स है, दो नंबर का भी एक पेयर बना दिया। 5 का भी एक पेयर बना सकते हैं एंड 3 का भी एक पेयर बन सकता है। इज इट क्लियर? तो नाउ आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा 900 है, 900 का जो है ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना, 900 के पेयर फैक्टर्स करें। फैक्टर्स आए 2 into 2 into 5 into 5, 3 into 3. नाउ वी टेक पेयर्स ऑफ सेम नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए आप 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, 5 का पेयर कंप्लीट और 3 का भी पेयर कंप्लीट है हमारा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई भी ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर कंप्लीट हो जाते हैं कि कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचता है, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है कि जिसका पेयर कंप्लीट ना हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो नंबर है यानी इट मींस 900 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिकॉज इसमें क्या है, हमारे पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स हैं, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचता है। तो वी कैन से दैट 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। एक नंबर है 400। अब हम चेक करेंगे कि इज 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। तो सेम प्रोसीजर इसके लिए अप्लाई होता है। आप क्या करेंगे, 400 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए फैक्टर्स करते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 to the 4, फिर 2 से अगेन 200, देन 2 से 50, 2 25, अगेन 5 25 और 5 1 5। नाउ फैक्टर्स ऑफ 400 आर 400 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Now make a pair of equal factors. Now it is a pair, it is a pair and it is also a pair. Now no any number left in the by pairing, कोई भी नंबर हमारा लेफ्ट नहीं हो रहा है, बच नहीं रहा है, सबके पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट 400 इज अ perfect square number. 400 is a perfect square number. Perfect square number. Is that clear? तो इस तरह से छोटा सा हमारा टेस्ट है। By using this test
we can find the given number is a perfect square number or not a perfect square number. ठीक, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम और समझते हैं इसको. सपोज एक नंबर है हमारा 8000, नंबर है 8000. द क्वेश्चन इज 8000 a perfect square number? So by using test we can check it is a perfect square number or not. Now make a prime factors. 2 4 is 8, 0, again 2 2 is 4, 2 1000, अगेन 2 से करेंगे तो 500, 2 से करेंगे तो 250, नाउ 2 से 125, अगेन 3 से 3 से नहीं 5 से जाएगा, 5 5 जा सॉरी 22 होता ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. नाउ फैक्टर्स ऑफ 8000 आर 8000 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6, again 5 into 5 into 5. तो इस तरह से हमने क्या करा, एक नंबर था हमारा 8000, हमको पता करना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं. तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम नंबर से 2 2 हम दोनों का पेयर आके पेयर कंप्लीट किया. नाउ यहाँ भी पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, यहाँ भी पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, एंड अगेन 5 इज आल्सो इक्वल फैक्टर एंड मेक अ पेयर. बट इन केस ऑफ 8000 one number is left. 5, the pair of 5 is not completed in the 8000. तो यहाँ पे जो नंबर है हमारे 8000, इसमें इस वाले जो नंबर है 5, इसके साथ कोई दूसरा 5 नहीं है, और ये क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं कर रहा है. इट मीन्स वी कैन से दैट वी कैन राइट इट एज इन 8000 a number 5 is left. So the given number 8000 is not a perfect square. आगे क्या लिखेंगे, is not a perfect square number. 8000 is not a perfect square number. Perfect square number. Is that clear? So with these examples you can better understand what is the square numbers and what is the perfect square numbers. अब 20 कुछ पेज क्वेश्चंस आते हैं. अपनी एक्सरसाइज भी देखिए, एक्सरसाइज आपकी है 3rd A, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. And the type of the question is this, like there are some questions for some numbers which is given to you, and the question asked to you that by using prime factorization method find which of the following numbers are not a perfect square. आपसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी एक नंबर दिया गिवन होगा, आपसे by using prime factorization method you can find the given number is a perfect square number or not a perfect square number. Is that clear? तो इस टाइप से हम लोग ने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, पहले स्क्वायर्स पढ़े एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़े. ठीक है, तो जैसे हम स्क्वायर्स के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सपोज हमारे पास एक नंबर है 1, तो 1 into 1 इट बिकम्स 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यानी 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1 होता है. एंड अगेन 2 into 2 मेक 2 स्क्वायर एंड इट गिव्स 4. देन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. नाउ स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल्स टू 16, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 25. अगेन स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल्स टू 36, स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल्स टू 49, स्क्वायर ऑफ 8 इक्वल्स टू 64, स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल्स टू 81, स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल्स टू 100,
स्क्वायर ऑफ 11 इक्वल्स टू 121। तो इस टाइप से हम किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और हमको सारे नंबर्स लगभग याद भी 1 से 30 तक सबको इसके स्क्वायर्स याद भी होनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से और भी नंबर के ले सकते हैं। 11 के आगे 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 380, 289 अगेन और भी आगे निकाल सकते हैं आप। 17 के बाद 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, अगेन 20 का स्क्वायर इज 400। ठीक, तो इस टाइप से हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे, नंबर्स के बारे में इनको याद भी कर लेंगे। तो स्क्वायर एटलीस्ट सबको याद होने चाहिए, नियर अबाउट 1 to 30 तक हमको सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो इजी है, आप लोग इसको पढ़िएगा, करिएगा, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मिलते हैं, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इन सब के अंदर क्या होते हैं पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर बोथ आर सेम। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे कैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में कि हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे निकालते हैं, डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।